الصلاة خير من النوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو، آج میں آپ کو اپنے گاؤں کا ایک لرزہ خیز واقعہ سنانے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، جسے ایک شخص نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. آئیے اسی کی زبانی اس واقعے کو سنتے ہیں. وہ شخص کہتا ہے کہ میں اس بات کا چشمدید گواہ تھا. آپ کو سنتے ہوئے ضرور لرزہ طاری ہو جائے گا. تو پھر سوچیں کہ میں نے تو اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ ہوتے دیکھا، تو اس وقت میرے خوف کا کیا عالم ہوگا. صرف میں ہی نہیں، گاؤں کے تمام لوگ جنہوں نے یہ واقعہ دیکھا ان کی حالت غیر تھی ڈر کے مارے. لیکن تمام گاؤں والے جو یہ سب دیکھ چکے تھے، آج سب وہ اپنی قبروں کے اندر ہیں. صرف میں آخری انسان بچا ہوں جس نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. آج میں اپنے ہاتھوں سے یہ واقعہ قلم بند کرنے جا رہا ہوں اور آپ کو سنانے جا رہا ہوں. شاید میں کل رہوں یا نہ رہوں، اس لیے اس واقعے کو انسان کی عبرت کے لیے سنا رہا ہوں. امید ہے سب کو اس سے عبرت حاصل ہوگی. میں جوانی میں ہی 5 وقت کا نمازی تھا. کبھی بھی کوئی نماز قضا نہیں کی تھی. خاص کر فجر کی نماز تو میری سب سے پسندیدہ نماز تھی، جس کے لیے میں خاص اہتمام کر کے مسجد جایا کرتا تھا. صبح سویرے صبح پرندوں کی آواز اور تازہ ہوا بہت لبھاتی تھی، اور ایسے میں خدا کی قربت، نماز کا سکون، یہ وہ وقت تھا جب میں بہت خوش رہا کرتا تھا. ہمارے گاؤں کا ماحول بہت اچھا تھا. سب ہنسی خوشی رہ رہے تھے. کبھی بھی کوئی عجیب بات نہیں ہوئی تھی ہمارے گاؤں میں. لیکن ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا. لیکن یہ صرف ایک دن کی بات نہیں تھی، یہ اس واقعے کی شروعات تھی، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا اور گاؤں والوں کا سکون غارت ہو گیا. ہمارے گاؤں کا جو ایک خوشگوار ماحول تھا، اس واقعے کے بعد گاؤں کے بچے تو کیا، بڑے بھی خوف زدہ رہنے لگے تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. ایسے ہی ایک سہانی صبح تھی. میں سویرے اٹھا اور مسجد کی طرف چل پڑا. فجر کی نماز کے لیے. دسمبر کا مہینہ تھا، اندھیرا تھا، ابھی تک روشنی ہونے میں کافی وقت تھا. میں فانوس اٹھائے مسجد کی طرف رواں دوا تھا. سردی تو بہت زیادہ تھی، لیکن نماز کے لیے جاتے ہوئے مجھے اتنی مسرت ملتی کہ مجھے سردی یا گرمی سے فرق نہیں پڑتا تھا. میں گاؤں کے راستے پر چل رہا تھا جہاں سے میں روزانہ گزرتا تھا. میرے گاؤں سے مسجد تھوڑا دور تھی. مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ نماز کے لیے مجھے بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے، اس سے میری نیکیوں میں مزید اضافہ ہوگا. میں خوشگوار موڈ میں چلتا جا رہا تھا کہ اچانک مجھے ٹھوکر لگی اور میں گرتے گرتے بچا. میں نے دیکھا، مجھے لگا کہ شاید کوئی پتھر ہے، لیکن یہ پتھر نہیں تھا، بلکہ یہ تو ایک عورت تھی، ایک جوان اور خوبصورت عورت. فانوس کی روشنی میں اس کا خوبصورت چہرہ نظر آیا، لیکن وہ اس حالت میں پڑی ہوئی تھی کہ اسے دیکھ کر میں پریشان ہو گیا تھا. وہ سڑک کے بیچوں بیچ بے ہوشی کی حالت میں پڑی ہوئی تھی. لیکن سب سے حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کا پیٹ بڑھا ہوا تھا، جیسے کہ 9 مہینے کی کوئی حاملہ عورت ہو. اسے دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا کہ وہ حاملہ ہے، اور شاید اسی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوئی ہے. لیکن یہ عورت آئی کہاں سے؟ یہ ہمارے گاؤں کی تو ہرگز نہیں تھی. اور ہمارے گاؤں کی عورت بھلا سڑک کے بیچوں بیچ اس حالت میں کیوں پڑی ہوگی؟ اس عورت کی یہ حالت قابل رحم تھی. میں اس وقت اکیلا تھا، آس پاس بھی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. مسجد تھوڑی دور تھی. میں پریشان ہو گیا کہ اب کیا کروں. میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن مجھ سے نہ ہو سکا. مجبور ہو کر میں جلدی سے مسجد میں آیا جہاں پر نمازی جمع ہو چکے تھے. میں نے کہا کہ تم سب میری مدد کرو، ایک عورت کو ہماری مدد کی ضرورت ہے. میری بات سن کر فوراً مدد کو آئے. انہوں نے کسی طرح اس عورت کو اٹھایا اور گاؤں میں موجود ڈیرے پر لے آئے اور چارپائی پر لٹا دیا. گاؤں کی دائی کو بلایا اور کچھ عورتوں کو بلایا تھا کہ وہ اس کی حالت کا اندازہ لگا سکے. اس عورت کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس کی حالت بہت نازک ہے، وہ زندہ نہیں رہ سکتی. تمام لوگ آہستہ آہستہ جمع ہو گئے اس عورت کو دیکھنے کے لیے. دائی نے کہا کہ اس کے پیٹ میں مردہ بچہ ہے اور یہ بھی زندہ نہیں بچ سکتی. اور تھوڑی ہی دیر میں وہ عورت
मर गई। हम सब गांव वालों को बहुत अफसोस हुआ। वो कौन थी, कहां से आई थी, कुछ मालूम नहीं था। कभी किसी ने उसे यहां पर देखा भी नहीं था। पूरे गांव में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। सारा दिन सबको इस औरत के मरने का अफसोस रहा और यही मौजू जेरे बहस रहा। हर घर में, डेरे में बस इसी औरत की बातें थी कि ये सब क्या था। उस वक्त गांव का माहौल बिल्कुल सादा सा था। लोग भी बिल्कुल सादा से थे। ना मोबाइल का जमाना था, ना टेक्नोलॉजी, कुछ भी नहीं था। खत्तो किताबत के जरिए कांटेक्ट होते थे। महीने किसी से बात नहीं होती थी। अगर कोई शहर से बाहर होता था तो एक टेलीफोन करने के लिए मीलों दूर जाकर शहर से फोन करना पड़ता था। अगर किसी से बात करनी हो तो एक फोन कॉल का खर्चा भी बहुत ज्यादा होता था। दिन यूं ही गुजर गया। रात हो गई और फिर सुबह हो गई, लेकिन फिर आजमाइश हम गांव वालों के लिए तैयार थी। एक दूसरी जगह से एक और औरत उसी हालत में मिली। वो भी 9 महीने की हामला थी। गांव वाले उसे फिर से बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो भी मर गई। अजीब सा खौफ व हरास गांव में फैल चुका था। ये सब क्या हो रहा था, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। गांव के लोग बिल्कुल सादा थे। वो मामले की तह तक नहीं जा सकते थे। कोई कहता था ये चौधरियों का काम है, तो कोई कहता था कि किसी बीर बाबा का काम है या किसी जादूगर का। हर कोई अपनी अपनी कयास आराइयां कर रहा था। लेकिन मसला सिर्फ ये था कि सिर्फ हामला औरत ही बेहोश क्यों पड़ी होती है और फिर वो मर जाती है। सबसे अजीब बात यह थी कि वो 9 माही की हामला औरतें होती थी जिनके बच्चे पेट में ही मुर्दा हो चुके होते। दोनों औरतों में यही एक नुमासलत थी। अभी गांव वाले पूरी तरह से संभले भी नहीं थे। अगली सुबह एक और औरत इसी हालत में मिली और वो भी मर गई। आप सब हकीकी मानों में परेशान हो गए थे। ये औरत एक जगह से नहीं मिली थी कि कोई जासूसी करता। रोजाना अलग अलग गलियों में कोई औरत पड़ी होती। सुबह सुबह ऐसा महसूस होता कि रात कोई इन औरतों को फेंक कर जाता है ताकि किसी को खबर ना हो। कुछ लोगों का कहना था कि गांव में खौफ व हरास फैलाने के लिए ये सब किया जा रहा है, लेकिन रोजाना एक हामला औरत कहां से आई थी? आखिर किसमें इतनी हिम्मत थी, ताकत थी कि वो ये सब कर सके? मजबूर होकर गांव के चौधरी साहब के पास ये मामला ले जाया गया तो वो भी सुनकर परेशान हो गए। चौधरी साहब खुद भी सालों से बे औलाद थे, लेकिन उन्होंने दूसरी शादी नहीं की थी। वो चौधराहन के साथ खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे। इसी तरह सिलसिला चल निकला। तकरीबन 12 दिन हो गए और 12 दिनों में 12 औरतें ऐसी हालत में मिली थी। चौधरी साहब ने कहा कि इस मामले की तह में जाना होगा कि कौन ये सब कर रहा है। यकीनन इसके पीछे कोई बहुत ही बड़ा हाथ है, वरना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं कि ऐसा कारनामा सर अंजाम दे सके। चौधरी साहब ने कहा कि किसी को कानो कान खबर नहीं होने चाहिए। हम अपने जासूस पूरे गांव में फैला देते हैं। रात को गांव के चप्पे चप्पे में चौधरी साहब ने अपने आदमी खड़े कर दिए थे। आज की रात बहुत खास थी। हर हाल में इस बात का सुराग लगाना था कि किसकी कारस्तानी थी। फिर आखिर एक जगह से कुछ आवाजें सुनाई दी। वो तमाम जासूस जो चौधरी साहब के थे एकदम से चौकन्ने हो गए। मैं भी उनके साथ था। एक बैलगाड़ी आकर रुकी जिसमें 2 आदमी थे। बैलगाड़ी पर एक औरत थी और उनके हाथ में फानूस था। उन्होंने वो औरत ऐसे ही गली में फेंक दी। वो लोग जाने ही लगे थे कि चौधरी साहब और उनके आदमियों ने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन उनके हैरत की इंतहा न रही जब उन आदमी का नकाब हटाकर उनका चेहरा देखा गया तो वो दोनों चौधरी साहब की हवेली के ही सबसे खास मुलाजिम थे। चौधरी साहब खुद बहुत हैरान हुए कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने उन दोनों को कैद कर दिया और उनसे सच्चाई उगलवाने के लिए खूब मारा, लेकिन उनकी जबानों पर तो जैसे ताले लगे हुए थे। वो कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थे। ये क्या हो रहा था चौधरी साहब खुद भी समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए परेशान थे कि गांव वालों को शक चौधरी साहब पर ही जाता, क्योंकि वो उनके अपने आदमी थे।
चौधरी साहब ने उन आदमियों को आखिरी धमकी दी कि अगर सच्चाई नहीं बताई कि ये सब किसके कहने पर किया तो उन्हें मौत की सजा सुनाई जाएगी। हर इंसान मौत से डरता था, वो लोग भी खौफ ज़दा हो गए थे, लेकिन जो इंकिशाफ उन्होंने किया वो सुनकर तो सबके सरों पर से जैसे आसमान गिर गया था। कोई इतना सफाक भी हो सकता है, ये किसकी कारस्तानी थी? उसका नाम तो सुनकर चौधरी साहब को जरा यकीन नहीं आ रहा था। ये उनके घर का भेदी था जो लंका ढा रहा था, यानी कि ये सारा काम चौधरायन का था। चौधरी साहब ने तमाम गांव वालों के सामने चौधरायन को बुलाया और इंसाफ का तमाम मामला किया। चौधरी साहब इंसाफ पसंद थे, इसलिए सब कुछ गांव वालों के सामने ही करना चाहते थे। अगर गुनाहगार उनके घर का हो, उनका रिश्तेदार हो, तब भी वो उसी के साथ किसी किस्म की रियायत नहीं करते थे। उन्होंने तमाम गांव वालों के सामने चौधरायन को बुलाया और कहा कि तुम्हारा गुनाह सामने आ गया, अब बताओ कि तुमने ये सब क्यों किया। सबने देखा कि चौधरायन का परेशानी से बुरा हाल था, वो अपने गुनाह को कबूल करने पर तैयार नहीं थी। बिलाखिर उसकी मुलाजमा बोल पड़ी। मुलाजमा ने कहा कि चौधरी इसे अपने साथ लेकर जाती है एक पीर बाबा के पास। इस पीर बाबा ने चौधरायन से कहा कि तुम 40 हामला औरतों की कुर्बानी दे दो, तब तुम्हें औलाद होगी। इसी मकसद के लिए अलग अलग इलाकों से चौधरायन के आदमी 9 महीने की हामला औरतों को लेकर आते थे और रोजाना जहर देकर उनकी जान लेकर उन्हें फेंक देते थे। अब तक तो सिर्फ 12 औरतों के साथ ये सब हुआ था। चौधरायन को 40 का हिसाब पूरा करना था। ये एक तरह का चिल्ला था जो पीर बाबा ने बताया था। मुलाजमा की बात सुनकर तो सब गांव वालों की रूहें लरस गई थी। ये कैसी कुर्बानी थी? अपनी औलाद को हासिल करने के लिए दूसरों की औलाद की कुर्बानी। सब हैरान थे कि चौधरायन अपनी औलाद की ख्वाहिश के पीछे इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे फर्क नहीं पड़ता था किसी की जान लेने से। कितनी आसानी से उसने औरतों को जहर दे दिया था। न सिर्फ औरतें बल्कि उनके पेट में पलने वाले बच्चे भी। चौधरी उनको नजर न आए, इस इंकिशाफ पर तो चौधरी साहब हैरान और परेशान थे। चौधरी साहब दूसरी शादी करना चाहते थे, शायद इसलिए चौधरायन ने यह सब किया। पहले कभी चौधरी साहब ने दूसरी शादी की बात नहीं की थी, लेकिन शायद खानदान के दबाव में आकर उन्होंने दूसरी शादी का फैसला किया तो चौधरायन से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। औलाद के हुसूल के लिए, वो सोतन से बचने के लिए उसने जाली पीर की बातों में आकर 12 जानें ले ली थी। न सिर्फ 12 बल्कि उनकी कोख में पलने वाले बच्चों को भी जान से मार दिया था। ये ऐसे दिल दहलाने वाला वाकया था जिसे सुनकर तमाम गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए। शैतान न सिर्फ पीर बाबा था खुद, बल्कि चौधरायन भी इस कदर हावी हो चुका था कि उसे फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो जो कर रही है वो किस कहरे खुदा का बाइस हो सकता है। आज भी मैं इस वाक़े को सुनता हूं। चौधरायन को सजा तो सुनानी ही थी चौधरी साहब ने, लेकिन इससे पहले इस पीर बाबा को लाया गया जिसने ये सब करने को कहा था। मालूम हुआ कि चौधरायन ने अपना सारा जेवर उसको दे रखा था और पीर बाबा ने जेवर के बदले ये अमल करने को कहा और चौधरायन का इरादा था कि चौधरी साहब को कहेंगे कि उनका जेवर चोरी हो गया। आज मेरी उम्र 90 साल के करीब है, लेकिन मेरे जहन में ये वाकया आज भी उसी तरह तरोताज़ा है। वो शख्स कहता है कि मैं सोचता हूं कि औलाद की ख्वाहिश इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती। सच कहते हैं औलाद और माल फितना है। अल्लाह हम सबको इस तरह की फितरों से महफूज रखे और हमें ऐसी औलाद दे जो हमारी मगफिरत का बाइस बने, ना कि हमारी गुनाहों में इजाफे का बाइस। कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखिएगा। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और मजीद इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि मजीद अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।